Welcome to all the students of Sri Siddh Vidyapeeth School. So today we are going to study the third chapter of science, which is fiber to fabric. In this chapter we are going to study that how fibers we get from plants, animals and chemicals converted into fabric and ultimately makes cloth. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे प्लांट्स, एनिमल्स और केमिकल से मिलने वाले फाइबर्स से बनता है फैब्रिक और जिससे अल्टीमेटली बनते हैं हमारे कपड़े. So students, look everywhere in your house like your clothes, curtains, bed sheets, bags, etc. So students, have you ever thought that how these all are made up of? So अगर आप अपने चारों ओर देखें जैसे कि आपके कपड़े, पर्दे और बेड शीट्स, बैग्स, तो आपने कभी ये सोचा कि ये सारी चीज़ें बनते किस तरीके से हैं और कैसे बनते हैं? तो हम यही इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि ये सारी चीज़ें किस प्रोसेस से बनते हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोग को लगते हैं इन चीज़ों को बनाने के लिए, और ये इनका जो पूरा जो एक प्रोसेस है वही हम इस चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं. सो स्टेप्स ऑफ मेकिंग क्लोथ्स. सो स्टूडेंट्स, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ मेकिंग क्लोथ्स? हमारे कपड़े बनाने के क्या क्या स्टेप्स होते हैं? Plants, animals, chemicals. So students, here you can see in the blue blocks that the three words are written, that plants, animals and chemicals. So which gives us fibers. So students, in the previous chapter you have also learnt about fibers and from where we get that fibers. So plants, animals or chemicals provides us some fibers. Okay, so fibers then converted into yarns. So fibers are then converted into yarns by the process of spinning. Fibers तब yarns में convert किए जाते हैं. कौन सा process में? Spinning के process में. Then yarns are converted into fabrics. उसके बाद yarns convert किए जाते हैं fabrics में. कौन? By the process of weaving and knitting. Then ultimately fabrics are converted into clothes by the help of stitching. Okay students? Fibers are used to make yarn, which in turn is used to make fabrics. Okay, so what are the types of fibers? So in the previous classes you have also studied that there are two types of fibers. For the first one is natural fibers and the second one is synthetic fibers. So synthetic fibers include nylon, acrylic and polyester. Okay, तो synthetic fibers क्या क्या होते हैं? Nylon, acrylic और polyester. यहाँ पे आप उसके पिक्चर्स भी देख सकते हैं. But natural fibers are divided into two groups. Okay, so natural fibers दो ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं. The first one is plant fibers and the second one is animal fibers. So students, what are plant fibers? The fibers which we get from plants are known as plant fibers. Okay, and what are animals fibers? The fibers which we get from animals are known as animal fibers. Okay, so this you also study in your previous classes. So what are the plant fibers? The first one is cotton. Okay, so cotton is a fiber which we get from plants. Same as jute. Jute is also a fiber which we also got from plants. Okay, coir is also a fiber which we generally get from coconut. Okay, कोकोनट के जो छिलके होते हैं तो उन्हीं से हम लोग को ये फाइबर मिलता है जिसका नाम है कॉयर. और एनिमल्स फाइबर्स हम लोग जैसे कि क्या क्या है? वुल और सिल्क. Okay, so what is natural fibers? The fibers which are obtained from plants and animals are called natural fibers. Okay, what are synthetic fibers? The fibers which are synthesized on industries from simple chemicals obtained from petroleums are called synthetic fibers. So synthetic fiber किसको बोलेंगे? जो fibers industries में synthesize किया गया है, मतलब बनाया गया है, कुछ simple chemical substances से बनाया गया है जैसे कि पेट्रोलियम, तो उन्हीं को बोलते हैं synthetic fibers. So students, हम अभी पढ़े कि एनिमल फाइबर्स दो तरह के होते हैं जैसे कि वुल और सिल्क होते हैं. तो इस चैप्टर में हम वुल और सिल्क मतलब इन दोनों एनिमल फाइबर्स के पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे वुल से हमारे कपड़े बनते हैं और कैसे सिल्क से हमारे
कपड़े बनते हैं और इसका पूरा प्रोसेस हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे. सो मेनली इन दिस चैप्टर वी आर फोकसिंग इनटू द एनिमल फाइबर्स एंड द डिटेल्स एंड द डिटेलिंग प्रोसेस अबाउट दिस फाइबर्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So wool, how wool helps us? So wool keeps us warm. ओके, तो हम लोग जब भी ठंडा होता है, जब भी ठंड गिरता है, तो हम लोग ज़्यादा क्या प्रीफर करते हैं? वुलन क्लोथ्स प्रीफर करते हैं, जैसे कि वुलन स्वेटर, वुलन शॉल, वुलन ब्लैंकेट्स, वुलन मफलर्स, वुलन कैप्स और वुलन ग्लोव्स. Why we prefer wool? Because it keeps us warm. Okay. So from where do we get wool? We get wool from hair, fleece of sheep, goat and some other animals. Okay, so these animals have thick coat of hair and wool is derived from their hair. तो हम लोग को wool कहाँ से मिलता है? Hair, जिसको हम लोग fleece भी बोल सकते हैं. तो hair किसका है? Sheep का hair या फिर goat का hair या फिर कुछ other animals भी होते हैं जिनके hair से ये wool हम लोग को मिलता है. और उनके जो जैसे कि स्किन है उसके ऊपर एक कोटिंग रहता है हेयर का, बहुत थिक हेयर का कोटिंग रहता है जो आगे जाके हम लोग जिसको वुल के नाम से जानते हैं और वहीं से हम लोग को वुल मिलता है. सो वाई दिस एनिमल्स हैव थिक कोट ऑफ हेयर? तो ये जो एनिमल्स हम लोग को वुल प्रोवाइड्स करते हैं, तो इन एनिमल्स के इतने थिक कोट ऑफ हेयर क्यों हैं? हेयर कीप्स दिस एनिमल्स वार्म्स एंड प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम कोल्ड ड्यूरिंग विंटर. सो इन एनिमल्स को हेयर क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, गर्माहट देता है. जो जब ठंडी होती है, मतलब जब विंटर गिरता है, कोल्ड होता है, तो ये जो हेयर का जो कोटिंग है उनको गर्म रखने में मदद करता है. फर ट्रैप्स एयर क्लोज टू एनिमल स्किन एंड एयर डज नॉट अलाउ हीट टू लूज फ्रॉम देयर बॉडी. और फर जो है मतलब उनका जो कोटिंग है, जो हेयर का जो कोटिंग है उसको फर भी बोला जाता है. तो उनको वो क्या करता है, वो जो हीटनेस है वो उसी को ट्रैप करके रख देता है, इसीलिए उसको बोला जाता है एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. तो जो एयर है उसको अलाउ नहीं करता है हीट को, मतलब अपने शरीर में बनाए रखने के लिए उसको हेल्प करता है और ठंडे से उसको बचाता है. नाउ वी विल स्टडी अ वेरी बेसिक टर्म, that is selective breeding. This is a very important term. Okay students, so listen this carefully. The hairy skin of the sheep has two types of fibers that forms its fleece. तो sheep के जो hairy skin जो होते हैं, तो उसको वहाँ पे दो तरीके की fibers हम लोग को मिलते हैं. ओके, जिसको हम लोग फ्लीस भी बोलते हैं, हेयर को अभी मैंने बताया. और वहाँ पे क्या दो तरह के फाइबर्स मिलते हैं. ओके, सो द कोर्स बियर्ड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर. कोर्स बियर्ड हेयर मतलब जो हेयर थोड़े से रफ होते हैं. दो तरह के हेयर मिलते हैं हम लोग बोले हैं, जैसे कि जैसे कि एक तरह के शिप में हम लोग को मिलता है कोर्स बियर्ड हेयर, मतलब थोड़ा रफ हेयर मिलता है. और दूसरी तरह के शिप में क्या मिलता है? फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर, मतलब वो थोड़ा सॉफ्ट होता है और बहुत फाइन होता है. विच क्लोजेस्ट टू द स्किन, और स्किन उनके बहुत स्किन के थोड़ा क्लोज भी होता है, बहुत फाइन होता है, बहुत सॉफ्ट होता है. द फाइन हेयर प्रोवाइड्स द फाइबर्स फॉर मेकिंग वुल. तो फाइन हेयर की हम लोग को मेकिंग वुल मतलब वुल बनाने के काम में बहुत हेल्प करता है. सम ब्रीड्स ऑफ शिप पोजेस ओनली फाइन अंडर हेयर. कुछ ब्रीड्स मतलब कुछ शिप्स के ऐसे ब्रीड्स होते हैं, कुछ शिप्स के ऐसे ब्रीड्स होते हैं जो क्या पोजेस करते हैं? फाइन हेयर पोजेस करते हैं. मतलब कुछ शिप्स सिर्फ अपने उनमें सिर्फ फाइन हेयर ही हम लोग को मिलता है. देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव birth to sheep which have only soft under hair. The process of selecting parents for obtaining special characters in their offspring such as soft under hair in sheep is termed as selective breeding. So mainly selective breeding का प्रोसेस क्या है? जैसे कि एक शिप मान लो, एक शिप में कोर्स बियर्ड हेयर है और दूसरा शिप फाइन सॉफ्ट हेयर है. तो अगर दो शिप में मीटिंग हुई और उनमें जो जो डीएनए में एक होता है, तो उसी को क्या बोला जाता है? जैसे कि फाइन सॉफ्ट हेयर. तो उनके पेरेंट्स को ऐसे इसी तरीके से हम लोग मतलब जो रियर करते हैं शिप को, जो ये काम करते हैं जनरली, वो ऐसे ही शिप को चूज़ करते हैं जिसमें फाइन सॉफ्ट हेयर हो. ठीक है, तो इसी जो ये सिलेक्टिंग का प्रोसेस है, जो
कोई इंसान ही करता है जो ये काम से जुड़ा हुआ है वूल बनाने के काम से। तो ये सिलेक्टिंग जो प्रोसेस है इसी को बोला जाता है सिलेक्टिव ब्रीडिंग, ताकि हम लोग ऐसा ही कुछ शिप्स लें जिनमें फाइन हेयर हम लोग को मिले और उनका हेयर सॉफ्ट हो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। सो एनिमल्स दैट यील्ड वूल, सो कौन कौन से एनिमल्स होते हैं जो वुल देते हैं? अभी तक हमने पढ़ा कि शिप्स देते हैं वुल्स एंड सम काइंड ऑफ गोट्स भी वुल्स देते हैं और कुछ अदर एनिमल्स। सो व्हाट आर दोस अदर एनिमल्स? ओके, सो वी विल लर्न दिस इन डिटेल्स। सो शिप कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट, तो शिप्स के वूल बहुत ही कॉमन है जो अवेलेबल कॉमनली मार्केट में अवेलेबल है। अंगोरा गोट, ओके, सो अंगोरा गोट क्या है? अंगोरा वुल देता है। क्या देता है? अंगोरा वुल देता है, जो विच इज़ फाउंड इन हिली रीजियंस सच एज जम्मू एंड कश्मीर। जो हिली रीजियंस में हम लोग को मिलता है वो उसको क्या वुल बोलते हैं? अंगोरा वुल बोलते हैं, जो कहाँ से मिलता है? अंगोरा गोट से मिलता है। यहाँ पे आप अच्छे से पिक्चर देख सकते हैं जो कहाँ पे जैसे ज़्यादा मिलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में। कश्मीरी गोट, द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट। तो कश्मीरी गोट का जो फर होता है, मतलब जो हेयर्स होते हैं उसको फर भी बोला जाता है, तो वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। इट इज़ वूवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स। तो वो किस वूवन मतलब वीविंग किया जाता है, किसमें? शॉल्स में वीविंग किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? पश्मीना शॉल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पश्मीना शॉल्स। आपकी मम्मी भी यूज़ करती होंगी पश्मीना शॉल्स, आप मम्मी से ज़रूर पूछिए, वो ज़रूर आपको बता पाएंगी। तो जो कश्मीरी गोट्स हैं वो किसमें क्या पश्मीना शॉल्स बनाने में बहुत ही हेल्प करते हैं। और कैमल्स भी हम लोग को बहुत तरीके से हेल्प करते हैं, जैसे कि द फर हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज ऑल्सो यूज्ड एज वुल्स। जो कैमल्स के जो हेयर हैं वो हमारे वुल बनाने में भी बहुत काम आते हैं। आप सब ये जानते भी होंगे, पता नहीं कि कैमल्स के जो हेयर है वो हम जो पेंटिंग करते हैं ना, जो ब्रशेस यूज़ होते हैं, अभी तो यूज़ नहीं होता है, लेकिन बहुत पहले ये एक था कि कैमल के हेयर से ही वो पेंटिंग ब्रश बनाया जाता था, और जिससे पेंटिंग करने में बहुत सब कोई को सुविधा होती थी। लेकिन आजकल वो सिंथेटिक में बदल दिया गया है, क्योंकि इनसे एनिमल्स को बहुत ही तकलीफ होता है और उनको बहुत ही प्रॉब्लम होता है हेयर के बिना, क्योंकि उनका जो कोटिंग हेयर है उनको जनरली प्रोटेक्शन के लिए ही दिया जाता है, लेकिन हम इंसान उनको वो हेयर्स को काट के उनका जो प्रोटेक्टिंग का जो काम करता है वो उनसे छीन लेते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। The other animals such as yak wool is common in Tibet and Ladakh. Alpaca, which is found in South America, also yield wool. Llama found in South America, which also yields wool. These are all kinds of animals which gives us wool. Now we will study about the rearing and breeding of sheep. Sheep are reared in many parts of our country for wool. States included Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttaranchal, Arunachal Pradesh and Sikkim, or the plains of हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो शिप्स बहुत सारे पार्ट्स में, हमारे जो कंट्री हैं बहुत सारे पार्ट्स में ये जो वुल है वो रियर किया जाता है, मतलब वुल से कपड़ा बनाने का काम चलता है। तो कौन कौन से स्टेट्स इंक्लूडेड है इनमें से? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, ये ऑल द स्टेट्स आर इंक्लूडेड। ओके, सो शिप्स आर herbivores. So herbivores, you all know that which kind of what is the term meaning herbivores? Okay, the animals which eats only plants are known as herbivores. So ships are herbivores and prefers grasses and leaves. Rearers are also feed them a mixture of pulses. Rearers मतलब जो उनको पालते हैं वो उनको कुछ pulses भी खिलाते हैं जो उनको पालते हैं, और just like corn, ज्वार, oil cakes, okay, and minerals. But in winter they are kept in indoors and fed on leaves, grains and dry fodders. Okay. सो सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप्स, जैसे कि हमारे देश में जो इंडिया में कोई ब्रीड्स के जो शिप्स होते हैं, अलग अलग जो शिप्स होते हैं, तो उनके कुछ नाम दिया गया है, जैसे कि लोही। द फर्स्ट वन इज लोही, गुड क्वालिटी ऑफ वुल, राजस्थान, पंजाब। ओके, सो लोही गुड क्वालिटी ऑफ वुल देता है, जो कहाँ मिलता है? राजस्थान और पंजाब में। रामपुर बुशेर, ब्राउन फ्लीस, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। नाली कार्पेट वुल, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। बखरवाल for woolen shawls, Jammu and Kashmir. Marwari coats wool, Gujarat. Patanwadi for hosiery, Gujarat. Okay, so these are the some Indian breeds of sheep. Now we will study the process of fibers into wool. कि fibers से कैसे wool बनते हैं, wool के कपड़े बनते हैं actually.
से वुल उसको बनाया जाता है। सो जनरली हम लोग को शिप से फाइबर्स मिलते हैं तो उनको वुल में कन्वर्टिंग का ये सारे प्रोसेस हैं। So what is the step 1? Step 1 is shearing. The fleece of the sheep along with a thin layer of skin is removed from its body. This process is called shearing. Machines similar to those used by barbers are used to shave off their hairs. तो जो ships हैं उनके जो thin layer of skin है उसको उनके बॉडी से अलग किया जाता है, मतलब उनके जो बाल हैं उनको बॉडी से अलग किया जाता है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? शेयरिंग बोलते हैं। और ये किस चीज़ से किया जाता है? ये मैनुअली भी हो सकता है। ओके, मैनुअली मतलब इसको हाथ से भी मतलब किया जा सकता है। हाथ से मतलब विदाउट मशीन, समथिंग ब्लेड टाइप का कुछ यूज़ किया जाता है। तो ये देखो यहाँ पे हाथ से भी किया जाता है और यहाँ पे मशीन से भी किया जाता है। ओके, सो मैनुअली मशीन से भी ये काम हो सकता है। Hairs are removed during the hot weather. This enables sheep to survive without their protective coat of hair. तो hairs generally उनको hot weather में इनका शेव किया जाता है, जो उनके लिए बहुत ही दिक्कत होती है उनको, क्योंकि वो जो हेयर है उनको थोड़ा गर्मी में तो उनको थोड़ा ठंडक देती है। लेकिन अगर हम लोग सब वो हेयर काट देते हैं तो उनको सर्वाइव करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। The hair provides woolen fibers. तो हेयर क्या प्रोवाइड्स करते हैं? वुलन फाइबर्स प्रोवाइड करते हैं। तो वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वुलन यार्न्स। तो वुलन फाइबर्स उसके बाद प्रोसेस किया जाता है, मतलब एक कोई स्टेप्स होते हैं जो यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। तो शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शिप। द uppermost layer of the skin is dead. Also the hair of sheep grow again just as your hair does. तो शेयरिंग का जो प्रोसेस है शिप को हर्ट नहीं करता है। उसका अपर मोस्ट जो लेयर है स्किन का ऑलमोस्ट डेड होता है। ठीक है, जैसे कि हम अपना जैसे बाल काटते हैं ना, तो जैसे फिर से बाल उग जाते हैं, तो उनका भी बाल जब काटते हैं तो फिर से वो उग जाता है। The second step is scoring. The sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt. This is called scoring. तो जो sheared skin है तो उनमें जो उसको अच्छी तरीके से वॉश किया जाता है ताकि उनमें जो भी ग्रीस, डस्ट, डर्ट जो भी है वो सब निकल जाए। तो इस वॉशिंग का काम जो होता है तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? स्कोरिंग बोला जाता है। स्कोरिंग इज डन बाय मैनुअली और इन मशीन्स। इट मेक्स द फ्लीस क्लीन। फ्लीस इज देन ड्राइड। तो स्कोरिंग भी मैनुअली मतलब हाथ से किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे ऊपर वाला पिक्चर में देख सकते हैं कि वो लोग हाथ से उसको क्लीन कर रहे हैं, और नीचे में वो मैनुअली मतलब वो मशीन्स में भी वो क्लीन हो रहा है। मैनुअली ऊपर वाला है, नीचे वाला मशीन वाला है। ठीक है, तो फ्लीस को ये सब मतलब फ्लीस मतलब हेयर, उनको क्लीन करने के लिए ये वाला प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद वो क्लीन हो जाने के बाद उनको ड्राई भी किया जाता है। The third step is after scoring, sorting is done. The hairy skin is sent to a factory where hair of different textures are separated and sorted. तो sorting का क्या प्रोसेस है? मतलब बहुत सारे ऐसे हेयर्स जो हैं वो मिक्सअप हो जाए होंगे, मतलब उनको अलग अलग करना है, जैसे कि उनके टेक्सचर, उनके कलर्स, उनके जो बहुत सारे अलग अलग जो भी हैं, थिकनेस बोलो या फिर सॉफ्टनेस बोलो, जो भी है, तो इन्हीं हिसाब से उनको पूरा अलग अलग किया जाता है। जो फाइबर्स निकले हैं वूल से तो उनको अलग अलग किया जाता है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सॉर्टिंग बोलते हैं। आफ्टर दैट द फोर्थ स्टेप इज रिमूवल ऑफ बर्ड्स, जिसको हिंदी में बुर्ड्स भी बोला जाता है। अपने जो बर्ड्स हैं वो जनरली जो हेयर है उनमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे बर्ड्स लगे हुए रहते हैं। तो इसी बर्ड्स को जो निकालने का प्रोसेस है इसी को बोलते हैं रिमूवल ऑफ बर्ड्स। The small fluffy fibers called birds are picked out from the hair. These are the same birds which sometimes appear on your sweaters. The fibers are scored again and dried. This is the wool ready to be drawn into fibers. ओके, तो ये कुछ बर्ड्स हैं जो हमारे स्वेटर्स में भी हम लोग को कभी कभी छोटे छोटे बर्ड्स मिल जाते हैं ना वुल के, तो उन्हीं को जो अलग किया हुआ जाता मतलब अलग करने का प्रोसेस जो है उसी को बोलते हैं रिमूवल ऑफ बर्ड्स। ओके, तो उसको फिर से स्कोर किया जाता है, मतलब फिर से जो स्कोरिंग का प्रोसेस है मतलब फिर से क्लीन किया जाता है और फिर से ड्राई किया जाता है बर्ड्स को निकालने के बाद। तो ये एक स्टेप हुआ। द 5th स्टेप इज डाइंग। डाइंग मतलब कलरिंग। अभी वुल में कलर भरने का समय आ गया है। तो अभी तक तो वुल वाइट कलर का था, तो इसमें अभी डिफरेंट कलर्स कैसे डालेंगे, जैसे कि हम पहनते हैं ना डिफरेंट कलर के स्वेटर्स, शॉल्स, ब्लैंकेट्स, तो ये कलरिंग कैसे होता है? तो दिस इज द स्टेप हाउ इट इज डन। The step is dyeing. The fibers can be dyed into various colors as the natural fleece of sheep and goats is black, brown or white. नेचुरल फ्लीस मतलब नेचुरल हेयर का कलर उनका क्या होता है? या तो फिर ब्लैक होता है, ब्राउन होता है या फिर व्हाइट होता है। तो इनको कलरिंग जो होता है तो इसी को बोलते हैं डाइंग। ओके।
द लास्ट स्टेप इज रोलिंग। द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। मतलब फाइबर्स को फिर स्ट्रेट किया जाता है, कॉम्ड मतलब उनको अच्छे से कॉम्ड किया जाता है और उसके बाद उनको रोल करके यार्न में बदला जाता है। जैसे कि मतलब धागा जो बनता है ना, तो वही जो प्रोसेस है लास्ट में, ये जो फाइबर्स स्ट्रेट किए, कॉम्ब किए और उनको यार्न में बदल दिए, ठीक है, यार्न में कन्वर्ट कर दिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, रोलिंग इनटू यार्न, दिस इज द मशीन वेयर द रोलिंग प्रोसेस इज गोइंग। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वुल फॉर स्वेटर्स। जो लॉन्गर फाइबर्स है वो वुल्स फॉर स्वेटर्स, मतलब वो वुल स्वेटर्स के लिए वुल का मतलब वुल प्रोवाइड करते हैं। द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वोवन इनटू वुलन क्लॉथ। यार्न्स आर देन कन्वर्टेड इनटू सिल्क फैब्रिक। तो जो शॉर्टर फाइबर्स है तो उनको किस लिए यूज़ किया जाता है? वुलन कोई कपड़ा बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन स्वेटर्स के लिए हमेशा लॉन्गर फाइबर्स यूज़ किया जाता है। और उसके बाद जो है यार्न्स आर देन कन्वर्टेड, तो यार्न का प्रोसेस तो ये रोलिंग में कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद का प्रोसेस क्या है? तो यार्न्स को फिर कन्वर्टेड टू सिल्क फैब्रिक, तो उसमें उसको फिर सिल्क फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद बनता है कुछ अदर थिंग्स। ओके, सो ऑक्यूपेशनल हैजर्ड क्या होता है? हम कभी भी अगर कोई भी काम करने जाए इंडस्ट्रीज़ में, तो वहाँ पे कुछ हमारे सेफ्टी मेजर्स भी होते हैं या फिर कुछ हैजर्ड्स भी हो सकते हैं, मतलब कुछ एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। जैसे कि व्हाट आर ऑक्यूपेशनल हैजर्ड? सो रिस्क फेस्ड बाय द वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स। कोई भी रिस्क, मतलब अभी कोई भी वर्कर्स कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उसमें बहुत ही खतरा हो सकता है, तो इसी खतरे को क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स बोलते हैं। सो ऑक्यूपेशनल डिजीजेस इज डिजीज ड्यू टू वर्क और वर्किंग कंडीशंस। ठीक है, तो ये कुछ डिजीजेस भी हो सकते हैं जब वो वर्क कर रहे हो, तो उनको हो सकता है कुछ डिजीजेस। जैसे कि इन वुलन इंडस्ट्री सॉर्टर जॉब इज रिस्की एज समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाय अ बैक्टीरियम व्हिच इज नोन एज एंथ्रैक्स व्हिच कॉजेज अ फैटल ब्लड डिजीज कॉल्ड सॉर्टर्स डिजीज। तो वुलन इंडस्ट्री में क्या होता है? एक बहुत ही रिस्की डिजीज़ होता है जो एक बैक्टीरिया से होता है, जिसका नाम क्या है? एंथ्रैक्स बैक्टीरिया है। तो वो सॉर्टर्स डिजीज़, मतलब जो सॉर्टिंग का काम करते हैं, तो उनको ये डिजीज़ हो सकता है। ये एक बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है जो ब्लड से रिलेटेड है, तो उनको ये बहुत ही रिस्क होता है। Also, the small pieces of woolen fibers can cause respiratory problems and diseases. कुछ छोटे छोटे स्मॉल पीसेस अगर हमने इनहेल कर लिया गलती से, जब सांस लिए, तो अगर वो अंदर चला गया तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बहुत हो सकते हैं, मतलब सांस लेने में दिक्कत हो सकती हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लंग्स प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और डिजीजेस भी हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो the remaining part of this chapter we will do in the next class. Till then, do all the notes in your fair copy. You can paste the pictures if it is possible for you. So आप ये जो जितने भी नोट्स हैं आप लिख सकते हैं कॉपी में। ये जो पिक्चर्स हैं वो आप अगर आपको अवेलेबल है तो आप वो उनको पेस्ट कर सकते हैं। अगर उनको आपको अवेलेबल नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस जो नोट्स है, जो रिटन नोट्स है, आप उसको अच्छी तरीके से कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, अपने फेयर कॉपी में लर्न ऑल द नोट्स एंड रीड द चैप्टर केयरफुली। ओके, सो जो भी जितने भी नोट्स हैं उनको अच्छे से तरीके से पढ़िए और जितने तक पढ़ाया गया है वो चैप्टर को और अच्छी तरीके से पढ़िए। और एक्टिविटी 3.2 और 3.2 करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही ईजी एक्टिविटी है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक आप ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़िए। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड दिस इज़ मेनली लिंक्ड विद अस, कि हमारे जो डेली लाइफ्स में हम लोग जो कपड़े पहनते हैं कैसे बनते हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ओके स्टूडेंट्स, तो द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन आप यही जो क्लास है इसमें जो पढ़ाया गया है उसको अच्छे से पढ़िए। ओके, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।